Now we are taking exercise 3.2 from NCERT book. Question 1 पहला क्या कहता है कि 10 students of class 10 boys and girls are taking part somewhere. So let number of boys are X and number of girls are y. According to the question, x plus y is equal to 10. This is one equation. Second relation क्या कह रहा है? Second relation कह रहा है if the number of girl is 4 more than the boys. Number of girl is 4 more than the boy. So number of girl y is equal to x plus 4. So this can be written here x minus y plus 4 is equal to 0. This is equation number 2 and this is equation number 1. अब इस क्वेश्चन में हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गए. टेबल 1 is required, table 1 and table 2. Then we have to find graph. तो टेबल 1 के लिए क्या लिखेंगे? x is equal to 10 minus y. So this is x and this is y. If I am taking 2 here, so this is 0. X is equal to 10. If I am taking this 0, this become 10. If I am taking this 7, this become 3. So this is table 1. Let us take table 2. Table 2 is here. Y is equal to x plus 4. So if I am taking this x and y, this is 0. If I am taking this 0, y is equal to 4. If I am taking this 0, this is minus 4. If I am taking this 3, this is 7. So clearly for a pair of linear equation, we are having two tables for the solution and we should draw a graph for each of the given equation. Highest value is 10. So 1, 2, 4, 6, 8 and 10. 2, 4, 6, 8 and 10. This is 2, 4, 6, 8, 8 and 10. Let us plot. First one, this is 10, 0, 10 0 is here, 0 10 is here. So this is graph number 1. This is graph number 1. This is 0 4. 0 4 means x is 0. 0 4 and minus 4 0. Minus 4 0 1. This is 2. This is 4. Minus 2 minus 4. So this is another one. So we have to take this one. And this point of intersection is 3 and 7. So point of intersection is here. This is 3 and 7. So from this figure it is very clear wherever these two lines are intersecting, the point of intersection, coordinate of point of intersection will be a solution. So this is a solution. It means first number of students, number of boys are 3 and number of girls are 7. So this is a way how to find. Second part of this question is exactly this. So we are taking question number 2. So we are taking question number 2. यहाँ पे क्या पूछा है कि check whether in the given questions, check whether compare क्या करना है a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2. Find whether the lines representing the following pair of linear equation intersecting at one point are coincident or parallel lines. तो कंडीशन क्या होना चाहिए भाई, हमने डिस्कस किया था कि a1 upon a2
नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइंस. सेकंड केस इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, दिस इज पैरेलल लाइंस. And a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2. These are, sorry, this is coincident line, coincident lines, and here it is parallel lines. तो whenever question number 2 और question number 3 में जो basic चीजें दी गई हैं वो क्या है कि a pair of linear equation is given, we have to check whether they are intersecting type of the graph, whether they are coincident type of the graph, whether they are the parallel lines. तो तीनों कंडीशन को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन कंडीशन को अप्लाई करनी पड़ेगी. एक केस और लिया गया, उसमें केस क्या है कि we have to check whether they are consistent or inconsistent. तो जब consistent है कि inconsistent है तो उसमें ये पहले दोनों कंडीशन आ जाएंगे. Let us find a1 upon a2 is equal to 5 upon 7, b1 upon b2 is equal to minus 4 by 6, and this value is minus 2 by 3. It is very clear here a1 upon a2 not equal to b1 upon b2. So पहला केस क्या बना, a1 upon a2 not equal to b1 upon b2. It means they are forming intersecting lines. तो is this clear? पहली बात तो ये हो गई कि ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा. कंसिस्टेंट में क्या होगा, एक सोल्यूशन होंगे कि इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे. तो दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, इट मींस वन सॉल्यूशन इज गिवन. सिमिलरली फॉर दिस सेकंड पार्ट a1 upon a2 I am taking here. तो a1 upon a2 is equal to 6 by 2, so this is 3 by 1. b1 upon b2 is equal to minus 3 upon minus 1, so this is 3 upon 1. c1 upon c2 is equal to 10 upon 9. Now this is very clear कि these two values are, these two ratios are equal, but this is not equal to this one. Here it is clear 3 upon 1 is equal to 3 upon 1 and not equal to 10 upon 9. It means a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. In this condition, ऐसे condition में कैसे ग्राफ बनेंगे, parallel lines. Parallel lines means no solution. Parallel lines बनेंगे. Taking question number 3, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, check for the given pair of linear equation is consistent or inconsistent. ये 1 मार्क के क्वेश्चन में बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे पूछा जाता है. तो वी मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर कि अगर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है तो या तो वो सॉल्यूशन रखेगा या वो सॉल्यूशन नहीं रखेगा. अगर वो सॉल्यूशन रखता है तो उसका नाम होता है कंसिस्टेंट, उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट. अगर सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, इट मींस इनकंसिस्टेंट. अब कंसिस्टेंट की जब बारी आएगी तो कंसिस्टेंट हैविंग टू पार्ट, या तो वन सॉल्यूशन रखेगा या तो इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन रखेगा, और यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं है. फॉर वन सॉल्यूशन इट इज इन द फॉर्म a1 upon a2 is equal to not equal to b1 upon b2, while a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. ये इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन बनाएंगे और कंसिस्टेंट हो जाएंगे. तो जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन हियर, तो व्हाट इज रिक्वायर्ड, हमें कंपेयर करना है. क्या कंपेयर करना है, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. So from here we can take a1 upon a2 is equal to 3 by 2, b1 upon b2 is equal to 2 upon minus 3, this is a minus 3 by 2. तो यहीं से क्लियर minus 2 by 3, तो यहीं से क्लियर हो गया a1 upon a2 not equal to b1 upon b2. Since a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, तो कैसे बनेंगे भाई, ये कंसिस्टेंट हो जाएंगे. इट मींस सॉल्यूशन है. जब सॉल्यूशन है तो क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट. लेट अस टेक सेकंड वन.
सेकंड टेकिंग सेकंड, तो a1 upon a2 is equal to 3 upon 2 by 9. It means कि this is 1 by 6, b1 upon b2 is equal to 5 upon 3 upon 10 minus 10, तो this is minus 1 by 6. Again this is very clear, ये 1 by 6 है और ये minus 1 by 6 है. It means a1 upon a2 not equal to b1 upon b2. This shows here a1 upon a2 not equal to b1 upon b2. So this is a consistent case. तो clear हो गया? मतलब in questions में what we have to find, we have to check whether a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, what kind of relation they have. Again I am telling you a1 upon a2 not equal to b1 upon b2. मतलब consistent होने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए. a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. ये consistent के लिए कंडीशन है, वन सॉल्यूशन के लिए. और इनकंसिस्टेंट के लिए फिर से मैं बता रहा हूं, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2. So let us take next question. In question number 4, what is required here? A pair of linear equation is given. We have to check whether they are consistent or inconsistent. और अगर consistent है तो we have to find solution, वो भी graphically. तो ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो एक सॉल्यूशन होगा, कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइट हो जाएगा. तो लेट अस फाइंड हियर दिस a1 upon a2 is equal to 1 by 2, b1 upon b2 is equal to 1 upon 2, c1 upon c2 is equal to minus 5 by minus 10. This value is coming here 1 by 2. It is very clear a1 upon a2 is equal to 1 by 2 is equal to b1 upon b2 is equal to 1 by 2 and c1 upon c2 is equal to 1 by 2. So all values are equal here, 1 by 2, 1 by 2 and 1 by 2. तो क्या लिख सकते हैं? This have a, पहली बात तो ये क्या हो गया? Consistent हो गया, consistent. अब solution के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा. तो let us find टेबल 1 एंड टेबल 2. टेबल 1, तो टेबल 1 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस y. तो दिस इज टेबल 1, दिस इज टेबल. वी हैव टू फाइंड 3 सॉल्यूशन, एट लीस्ट 3 सॉल्यूशन फॉर करेक्ट ग्राफ. तो अगर मैंने इसकी वैल्यू ले ली 0 तो this become 5. If I am taking this 0, then y is again 5, and if I am taking here 2, this become 3. Let us take table 2. Table 2 means what? This value is given here for the second equation. This is table 2. Table 2 is given here. It means x, taking 2 as a common, तो x plus y is equal to 5 again. Now this become here x is equal to 5 minus y. So the same equation we have here. So all the same values will be here, x and y. So this is 5 0 and 0 5 and 3 2. So a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. It means ये बात क्या होगी कि they have infinite many solution. अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका मतलब एक के ऊपर दूसरा, अगर हम ग्राफ बनाएंगे इसका मतलब कि एक ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ ओवरलैप करेगा. तो मीन्स क्या हुआ कि हमें इसको ड्रॉ करना है. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे स्केल आप लिख देंगे 1 2 3 4 5 हो गया. ठीक है भाई. अब क्या करना है? दिस इज 5 0 दिस पॉइंट एंड दिस इज 0 5. ये पहला इक्वेशन यहां से ऐसे बन गया. अब दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए
दिस इज अगेन द सेम पॉइंट्स, तो इसके ऊपर दूसरा हमारा आ जाएगा। तो दे हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्लियर होगी बात? सिमिलरली टेकिंग फॉर द सेकेंड वन इज द केस हियर a1 upon a2 is equal to 1 by 3, b1 upon b2 is equal to minus 1 upon minus 3, this is 1 by 3, c1 upon c2 is equal to minus 8 upon minus 16, this is 1 by 2. This is very very clear, since a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2। क्यों भाई? 1 by 3 इक्वल है 1 by 3 बड़ा है, 1 by 3 and 1 by 3 दोनों क्या है? इक्वल रेशियोज हैं, बट 1 upon 2 is not equal, तो a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2। तो इस केस में क्या होगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। तो हमें क्या करना है? यहीं पे छोड़ देना है, हमें सॉल्यूशन नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन दिया है कि चेक वेदर दे आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। पहली बात तो हमने चेक कर लिया कि ये कंसिस्टेंट है। अब इसके बाद ये कहता है कि अगर कंसिस्टेंट है देन फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो व्हेनेवर दिस इज कंसिस्टेंट देन वी हैव टू मूव फॉर द ग्राफ एंड फ्रॉम ग्राफ वी कैन फाइंड द सॉल्यूशंस। ठीक है, तो पहले केस में हमारे पास कंसिस्टेंट था, हमने ग्राफ बनाया और ग्राफ बना के ये सॉल्यूशन आप कुछ भी ले सकते हैं, एवरी पॉइंट आर सेम फॉर द बोथ ग्राफ। अब सेकंड पार्ट को टेकअप करते हैं जिसमें इट इज गिवन हियर x minus y is equal to 8 and 3x minus 3y is equal to 16। अब हमने कंपेयर कर दिया, a1 upon a2 की वैल्यू आई 1 by 3, b1 upon b2 की वैल्यू आई 1 by 3 और c1 upon c2 की वैल्यू आ गई 1 by 2। अब देखा हमने कि पहले दोनों रेशियो इक्वल है, इट मींस a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये क्या है? इनकंसिस्टेंट। तो हमें ग्राफ की जरूरत नहीं है, हमें ग्राफ की जरूरत नहीं। टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा है? देयर इज अ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो लेट solution, let breadth of garden be x unit and length be y unit। क्लियर हो गया? लेंथ हमने लिया x मीटर, it is given in meter, x meter and breadth is given in y meter। ले लिया। अब कंडीशंस क्या बना रहे हैं? क्वेश्चन कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो बात क्लियर हो गई। हाफ पेरीमीटर द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। आगे कहता है the length of the garden is 4 more than the breadth, its breadth। it means there is a relation between breadth and length। तो वो रिलेशन मैंने यहाँ पे शो किया और ये बताया कि पेरीमीटर के बारे में क्या है। तो एक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हाफ पेरीमीटर क्या होता है भाई? 2l plus b होता है, इज इक्वल टू 36। तो इनको कैंसिल कर दिया। लेंथ क्या था? x था, लेंथ y था, तो x plus y is equal to 36। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 आया। मतलब हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। तो हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन की वैल्यू क्या होती है? ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ होती है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ होती है। इसकी वैल्यू हमने क्या किया? पुट कर दिया कैंसिल करके। लेंथ इज y and breadth is x equal to this। सेकंड केस क्या आ रहा है? The relation between length and breadth is given, तो y is equal to x plus 4। कह रहा है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है। लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ।
So this is equation number. अभी we are aware with the graphical representation only, तो हमें क्या करना है, इसके लिए ग्राफ बना देना है. अदरवाइज आगे के एक्सरसाइजेस में हम डिस्कस करेंगे. क्या डिस्कस करेंगे? हाउ टू एलिमिनेट, हाउ टू सब्स्टिट्यूट बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो देयर आर मेनी वेज टू फाइंड द सॉल्यूशन, बट यहाँ पे हम ऐसे ग्राफिकली चेक कर लेते हैं. तो दिस इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस. Rx minus y plus 4 is equal to 0. This is equation number 2 and this is equation number 1. So a1 upon a2 की वैल्यू लेते हैं 1 by 1. This is 1 by 1. b1 upon b2 की वैल्यू लेते हैं 1 upon minus 1. तो यहीं से हमें क्लियर हो गया कि they are having one solution. तो since a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गए. लेट अस मेक अ टेबल 1. दिस इज टेबल 1 फॉर दिस इक्वेशन. तो x plus y is equal to 36, x is equal to 36 minus y. तो टेबल बना देते हैं. यहाँ पे टेबल 1 हमारे पास आ गया. This is x and y. If I am taking 0, this become 36. If I am taking this 0, this become 36. एक और लेते हैं. If I am taking this 20, this become 60. क्लियर होगी बात? पहला टेबल. टेबल 2 ले लेते हैं. टेबल 2 यहाँ के लिए लेंगे. x is equal to y is equal to x plus 4. तो y is equal to x plus 4. एक बार इसको 0 कर दिया, एक बार इसको 0 कर दिया. x and y. When this becomes 0, this is 4. When this becomes 0, this is minus 4. और इसके बाद एक और ले लेते हैं. x is equal to 2, this become 6. अब हमने क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ कर देना है. और ये जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, लाइंस, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8. तो हाईएस्ट वैल्यू 36 मैं ले लेता हूं. दिस इज 10 20 30 40 ऐसे ले लिया. 10 20 30 40 10 20 30 और 40 आ लिया. -10 -20 ऐसे कर दिया. अब अगर प्लॉट करना है पहले इक्वेशन को, दिस इज 36 0. दिस इज अराउंड हियर ओनली एंड दिस इज अराउंड हियर ओनली. तो पहला ग्राफ हमारा ऐसे बन गया भाई. दिस इज 0 36 एंड दिस इज 36 0. पहला ग्राफ बन गया. दूसरा लेंगे 4 0. दूसरा लेंगे 0 4 0 4 है. if I am taking this 0, okay, if I am taking this 0, y is equal to 0, तो this become -4. तो -4 मान लीजिए कि यहाँ पे है. दिस इज फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज अनदर पॉइंट. तो ये हमारा एक इक्वेशन ऐसे बन जाएगा. दूसरा ग्राफ बन जाएगा. तो वेयर वी आर इंटरसेक्टिंग, दिस वैल्यू इज कमिंग द पॉइंट ऑफ दिस. सपोज दिस पॉइंट इज दिस AB. तो AB क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा. लेंथ हो जाएगा x, x हो जाएगा a और ब्रेथ हो जाएगा y और y इक्वल टू हो जाएगा b. दिस इज द सॉल्यूशन. दिस इज द वे. दिस इज नॉट क्लियर फ्रॉम द फिगर. तो आप जब ग्राफ पे बनाओगे तो पॉइंट विल बी क्लियर. और पॉइंट जब क्लियर हो जाएगा तो जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज P, इसका कोऑर्डिनेट a और b है. a रिप्रेजेंट x. तो x के लिए हमने माना है x को हमने ब्रेथ मान लिया था. तो दिस इज ब्रेथ. ब्रेथ इज इक्वल टू a और लेंथ हो जाएगा y, y इज इक्वल टू b. तो दिस इज क्लियर. जब कभी भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो पहला काम ये करना है कि वी हैव टू ड्रा फिगर, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए. और जब सारी चीजें क्लियर हो जाए देन वी हैव टू फॉर्मुलेट इक्वेशन. और इक्वेशन फाइंड करने के बाद वी शुड प्रोसीड. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? एक इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है कि यू फॉर्मुलेट, यू फाइंड अनदर इक्वेशन फॉर 3 डिफरेंट कंडीशंस. कह रहा है कि एक इक्वेशन हमने दे रखा है,
आप अलग अलग इक्वेशन बनाइए डिफरेंट कंडीशन के लिए। पहला कंडीशन उन्होंने दिया कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाए, फॉर्म करें। तो पहला इक्वेशन हमारे पास है ही, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारे पास होते क्या है, a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2। टेकिंग केयर ऑफ दिस रिलेशन, इनको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम इसको फॉर्मुलेट कर देते हैं। तो a1 upon a2 हमने ले लिया है, इसका मतलब अगर मैं पहला x ले लूं तो 2 upon 1 हो गया, और यहाँ पे 2 upon 1 नहीं होना है, तो हमने क्या किया, इसके बाद ले लिया 4 प्लस 4y, और 8 को ऐसे रख दें, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया, क्या क्लियर कर दिया कि दिस इज 2 a1 upon a2 देख लेते हैं, a1 upon a2 दिस इज 2 upon 1, और b1 upon b2 लेते हैं, b1 upon b2 लेते हैं, तो दिस इज 3/4। तो इट डिपेंड्स ऑन अस, हमें जो भी समझ में आया हम ले सकते हैं, केवल कंडीशन को फॉलो करना है, ठीक है। पहले दो रेशियोज की वैल्यू इक्वल नहीं होना है, तो इट इज अप टू यू, यू कैन फॉर्मुलेट। तो क्लियर हो गई बात, मैंने इसको देखा और यहां से इसको फॉर्मुलेट किया, इसका कोफिशिएंट 2 था, मैंने इसको रखा 1। तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ देखा मैंने कि ये 2 है, यहाँ पे 1 ले लिया, ये 3 था, ये 4 कर दिया। तो दिस इज वेरी क्लियर कि पहला रेशियो हमारा 2:1 आ रहा है और दूसरा रेशियो 3/4 आ रहा है। तो इट वी आर फ्री टू टेक एनी इक्वेशन बट बाउंडेड विद दिस कंडीशन। फॉर पैरेलल लाइंस a1 upon a2 होना चाहिए बट नॉट इक्वल टू b1 upon b2। तो a1 upon a2 एग्जैक्ट वैल्यू मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, 2x ले लिया प्लस 3y ले लिया, और 8 की जगह मैंने ले लिया 10 ले लिया, ठीक है भाई। तो दिस इज सेकेंड वन। क्यों, a1 upon a2 की वैल्यू चेक कर लेते हैं, 2/2 दैट इज 1/1। b1 upon b2 की वैल्यू चेक कर लेते हैं, दिस इज 3/3 अगेन 1/1, बट c1 upon c2 की वैल्यू हो जाएगी -8 upon -10, दिस इज 4/5। अब अगर ये रेशियो और ये रेशियो को मैं कंपेयर करता हूं, तो दिस इज क्लियर हियर दैट a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2। तो इन दिस कंडीशन पैरेलल लाइंस के लिए हमें एक चीज ध्यान देना है कि तीसरा रेशियो इक्वल नहीं होने चाहिए, पहले दोनों रेशियोज इक्वल होने चाहिए। इसलिए मैंने इस कोफिशिएंट को यहाँ पे रखा, इस कोफिशिएंट को एग्जैक्टली रख दिया। हम चेंज भी कर सकते थे, लेकिन रेशियो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, और इसको हमने चेंज कर दिया, थर्ड रेशियो इज नॉट गोइंग टू बिकम इक्वल, ये हो गया। फॉर द थर्ड केस कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होगा, all ratios will be equal, so exactly we can take the similar, this is multiplying this equation by 2, so this is 4x plus 6y minus 16 is equal to 0। let us check a1 upon a2, यहाँ से 2/4, a1 upon a2 is equal to 2 upon 4, b1 upon b2 this is 3 upon 6, c1 upon c2 is equal to -8 upon -16। तो this value is 1/2, this value is 1/2, this value is 1/2। तो this is very clear, all ratios are equal, when all ratios are equal it means कि ये बनाएंगे coincident line। this is very clear, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप फॉर्मुलेट कर सकते हैं सेकेंड इक्वेशन को, and you are having infinite many chances, but taking care of the condition, taking care of question number 7 क्या दिया हुआ है, a pair of linear equation given x minus y is equal to 1, दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 3x plus 2y minus 12 is equal to 0। इसमें कहता है कि with help of these two equations, two graphs and x axis we have to form a triangle, जो कि क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और इस ट्रायंगल को फॉर्म करने के बाद उस ट्रायंगुलर रीजन को हमें क्या करना है, शेड करना है। तो क्वेश्चन इज क्लियर, with help of these two graphs
and x-axis we have to form a triangle and this triangular region we have to shade. ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो हम स्टार्ट कर देंगे सॉल्यूशन. For the solution what is required here? Table 1 and table 2. तो टेबल 1 निकाल लीजिए. टेबल 1 होगा x is equal to 1 plus y. तो यहाँ पे हमने टेबल ऐसे निकाल लिया xy. Keeping this 0, तो this is 1. Keeping this 0, this is minus 1. Keeping this 1, so this become 2. This is table number 1. And table number 2. Table 2 for this one, so we can take here 2y or 3x, it is up to us. 2y is equal to 12 minus 3x. अब टेबल हमने इसे बनाया x and y. If I am taking this 0, so this becomes 6. If I am taking this 0, so this becomes 4. This becomes 4. And if I am taking this 2, so 3 2s are 6 and this becomes 6. 6 divided by 2, that is 3. हमारे पास दोनों इक्वेशन के लिए दोनों टेबल आ गए. Let us draw the graph. अब हमें ग्राफ को ड्रॉ करना है. So this is x axis, this is y axis, x dash, y and y dash. Let us take the points 1 2 3 4 and minus 1 minus 2 minus 3. This is 1 2 3 and 4. Here also 1 2 3 4 1 2 3 4 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4. So this is minus 4. Scale I am taking here on x axis and y axis. 1 centimeter is equal to 1 unit on both the axes. Let us plot the points. Let us plot the point. तो पहला क्या है 1 0, तो 1 0 यहाँ पे हो गया. दूसरा क्या है 0 minus 1, 0 minus 1 यहाँ पे. तो ये हमारा पहला ग्राफ ऐसे निकल गया. ठीक है. दूसरा है 0 6, 0 6 यहाँ पे है हमारे पास, तो 6 हम ले लेते हैं. This is 6 here, 0 6 is here, 0 6 and 4 0 यहाँ पे हुआ. तो this is here, this is another one. हमारे दोनों ग्राफ बन गए. This is line 1, this is line 2. अब ये क्या कह रहा था कि shade the triangular region, give its name. Suppose this point of intersection A, this is B, this is C. इसको आप ऐसे शेड कर दीजिए. This is required solution. क्लियर हो गया. पहला क्वेश्चन था कि draw the graph, फिर with help of x axis form a triangle and triangle will be shaded. तो हमने क्या किया, पहले ग्राफ बनाया 1, ग्राफ 2, फिर इसके बाद with help of x axis, y axis से ये ट्रायंगल बनेगा. With help of x axis we can have this triangle, naming this ABC, और इसके बाद हमने इसको शेड कर दिया. So this was all about for the exercise 3.